So let's start question number 13. So you have been given the following table and compute arithmetic mean using step deviation method. तो हम step deviation method से इसे solve करने वाले हैं. So let's get started. So this is the question number 13. We have given x and f और हमें d का कॉलम ऐड करना है d dash and f d dash. So हमें as it is ये कर देने का है और हमें step deviation method से इसे solve करना है. So सबसे पहले तो हमें इसमें से assume करना पड़ेगा a को, फिर हमें d फाइंड करना होगा जो कि है x माइनस ए. सो आई होप आपको ये आता होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये सीखा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट d डैश. d डैश कैसे ढूंढना है? d अपॉन सी. आपको क्या कॉमन लग रहा है? -10 -5 5 10. सो 5 के टेबल में ये सब जा रहा है तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे. सो आएगा -2 -1 0 1 एंड 2. नाउ हमें एफ डी डैश का कॉलम ऐड करना है. सो दैट इज़ -2. कैसे आया? एफ वी नीड टू मल्टीप्लाई एफ एंड डी डैश. सो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज़ -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज़ -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज़ 0. तो ऐसे करके यू हैव टू फाइंड एफ डी डैश. अब इसका टोटल करना है तो क्या आएगा? 9 आएगा. इसका हम टोटल करेंगे तो 15 आएगा. I hope you guys remember the formula to find the step using mean using the step deviation method. So the formula is a plus f d dash multiplied by c divided by sigma f. Yes, so this is the formula. So we need to input the values of the values in the formula. So we get the answer 63. 63 is the answer. I hope you all got it. So in question number 14 we have given the data. Now this is a different question in which we have given classes with frequency. So classes के लिए हमको formula देखना पड़ेगा क्या है. इसमें लिखा है कि आपको step deviation से you need to find mean using step deviation method, but we are using all the three methods to compute the mean. Okay, so first of all let's see the formulas that we need to apply for finding the mean. So these are the formulas. Now we need to मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब आपको क्लास दिया है और जब f is given, what formula we have to input in when we are using direct method. So for the formula, so for the direct method, for finding the mean, so the formula is sigma fx upon sigma f. Now for the shortcut method or assumed mean method, if the class and frequency is given, we have to apply this formula, that is a plus sigma fd upon sigma f. Now for computing mean by the step deviation method, तो हमें क्या करना है? a plus sigma fd dash upon sigma f multiply by c. So this is it is with the only case when we are given with class and frequency. The 14th question. Now we are solving it by the direct method. So we have given class, frequency and we need to find the mean. So हमें class दे रखा है और सबसे पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा which is class mark. I know आपको class mark पता होगा कि क्या होता है. 0 plus 10 which is 10 divided by 2. So the answer is 5. तो हमें x इस प्रकार से ढूंढना है. ठीक है, हमें x ऐसे ढूंढना है. इसकी 10 plus 20 that is 30. 30 divided by 2 that is 50. So we need to find x. Now fx का कॉलम भी चाहिए because फॉर्मूले के हिसाब से हमें x और fx दोनों का कॉलम चाहिए. So we need to multiply f and x. 14 5 से 17, 18 15 से 270. So ऐसे we need to multiply these values and then we need to find out. So हम इसका टोटल करेंगे. So we get 27 80 और इसका हम टोटल करेंगे we get 100. So we need to put the values, the formula for computing the mean from the direct method, that is sigma x is equal to x bar equals to sigma fx upon sigma f. So इसका टोटल we need to sigma fx, we need to input the value of this and of this और हमें फ्रीक्वेंसी जो है sigma f, हमें इसका वैल्यू यहाँ पुट इन करना. तो आंसर आ जाएगा 27.8 इज द आंसर.
लेट्स सॉल्व बाय शॉर्टकट मेथड. सो शॉर्टकट मेथड में वी नीड टू थिंक कि कौन कौन सी जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से ऐड होने वाले. तो अगर हम फॉर्मूला को देखें, इफ़ वी सी द फॉर्मूला, हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलम ऐड करना चाहिए. सो डी एंड एफ डी, हमें ये दो कॉलम ऐड करने की ज़रूरत है. ओके, सो वी नीड टू अज्यूम ए फ्रॉम द एक्स कॉलम. ठीक है, हमने 25 को ए एज अज्यूम किया है. और यहाँ हमने 25 को क्यों अज्यूम किया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. कैलकुलेशन विल बी मोर सिंपलर इफ़ यू अज्यूम द वैल्यू दैट इज़ 25. सो डी हमें पता है कैसे निकालना है, x माइनस ए. ठीक है, हमने फाइंड कर लिया. नाउ अब हमें एफ डी का कॉलम ऐड करना पड़ेगा फॉर कंप्यूटिंग द मीन. सो हमने एफ डी का कॉलम ऐड किया बाय मल्टीप्लाइंग एफ कॉलम विद डी कॉलम. 14 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट इज़ -280. 18 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज़ -180. 20 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज़ 0. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़ फ्रॉम एफ कॉलम एंड फ्रॉम डी कॉलम. तो हमें एफ डी मिल जाएगा और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे इस कॉलम का. इसका तो हमें पता है 100 है ही. फिर हमें फॉर्मूला में जाना है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला व्हेन वी आर कंप्यूटिंग मीन विद द शॉर्टकट मेथड? सो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, दैट इज़ 100. ओके, और ए हमने क्या अज्यूम किया था? दैट इज़ 25. सो 25 हमने अज्यूम किया था सिग्मा एफ डी दैट इज़ 280 एंड सिग्मा एफ दैट इज़ 100. सो 25 plus 2.8 that is 27.8 is my answer. Okay, now let's solve it by step deviation method. So हमें पहले तो फॉर्मूला को देख के ये पता लगाना है कि which columns we need to add now. So that is हमें जो कॉलम हमें ऐड करने हैं वो है एफ डी डैश, बिकॉज इसमें एफ डी डैश दिया हुआ है, और डी डैश. क्योंकि जब तक हमें डी डैश नहीं मिलेगा तब तक हम एफ डी डैश नहीं ढूंढ सकते हैं. सो वी नीड टू ऐड द कॉलम ऑफ डी डैश. मैंने पहले भी बताया था कि डी डैश हमें कैसे फाइंड करना है, डी अपॉन सी. अब सी हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको डी का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि -20, -10, 10, 20 किसकी टेबल में जा रहा है, क्या कॉमन है इनमें, विच इज़ 10 की टेबल में सब जाएगा, है ना. सो डी क्या है हमारे यहाँ पे -20, और हमने सी की वैल्यू क्या अज्यूम की है? हमने सी की वैल्यू अज्यूम की है 10. हमने सी की वैल्यू 10 अज्यूम की है. सो -20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ -2. -10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ -1. तो हमने ऐसा वैल्यूज़ ढूंढा है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी एफ डी डैश. एफ डी डैश हम कैसे फाइंड करेंगे? वी विल बी मल्टीप्लाइंग एफ विद डी डैश. सो 14 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज़ -28. 18 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज़ -18. सो हम ऐसे करके वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ डी डैश एंड देन वी विल डू द टोटलिंग ऑफ एफ डी डैश. ओके, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन इज सिग्मा डैश equals to a plus sigma, x bar equals to a plus sigma f d dash multiplied by sigma f multiplied by c. So we will put the values in the formula and then we have our answer, that is 27.8. ठीक है. From any method if we are computing mean the answer will be same. हमने किसी भी मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा, सबका आंसर सेम आने वाला है, that is 27.8 and 27.8. So we have already done 14th question. Now 15th and 16th question are of same kind. So I hope you will do it by yourself. So it is the same method. We have to find out mean by step deviation method where classes are given. And 16th question is also same. We need to compute the mean from the step deviation method. So both the question we have to do from step deviation method. Number 18, find the average marks from the following data by direct method. So we have given the data. सो क्लास इज 0 to 10, 10 to 20 ऐसे ऐसे करके है, और फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, एक्स हमको फाइंड करना आता है. सो कैसे फाइंड करना है? दैट इज 0 + 10 इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5. सो वी हैव गिवन द क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, एक्स हमको ढूंढना आता है, विच इज़ 0 + 10 दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5. ऐसे ऐसे करके वी नीड टू फाइंड 10 + 20 इक्वल टू 30, 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5. क्लास लेंथ, क्लास मार्क ढूंढना है हमको. Now we need to find fx. So multiply f and x, 5 5 is 25, 8 into 15 that is 120. We do the totaling of this whole column, so we get 835.
एफ का अगर हम कॉलम का टोटलिंग करेंगे हमको 35 मिलेगा. What was the formula for the direct method? X bar equals to sigma fx upon sigma f. We will put the values and we will get the answer 23.857. पर we will be rounding off, तो आंसर हमको मिलेगा 23.86 बिकॉज यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. अभी इसकी जगह अगर 2 होता तो हम नहीं करते राउंड ऑफ. We will be getting that is 23.86 by rounding off. We are getting this answer.